Bismillahir Rahmanir Rahim. Now, previously we have studied phosphate bonded investment materials, and now these are the silica bonded materials. As already we have described that bonded is the name which comes after the material which is actually the used as a binder. So silica bonded material is the material which uses binder or in which binder used is silica. Now silica has two functions. Silica is also used as a refractory material and it is also used as a binder. Now the powdered quartz or cristobalite, these are the refractory materials and they are bonded together with a silica gel. And when we heat this gel, it turns into silica and mold is a tightly packed mass of silica particle. इसमें mold फिर वही पुराने वाला है. Now binder, how it acts as a binder. Ethyl silicate or its oligomer, when putted or when reacted with dilute HCl, hydrochloric acid, and industrial spirit, then what happens? Spirit improves the mixing of ethyl silicate. Otherwise, it is immiscible to water. And then a slow hydrolysis of ethyl silicate occurs, which produces a sol. You people know what is a sol. And sol of silicic acid, which also liberate ethyl alcohol as a byproduct. So this is the chemical reaction. Then again the silica gel, the sol then converts into silica gel. Always whenever we have a sol, we have to convert it into a gel. अच्छा जी. Now silicic acid sol converted into silica gel when it is mixed with quartz or cristobalite powder, but in alkaline condition. And for this alkaline condition, we are using magnesium oxide as a pH regulator. Otherwise, our material is acidic because of dilute hydrochloric acid. Now, solution of hydrolyzed ethyl silicate binder are normally made previously and stored in dark bottles. Why in dark bottles? Because light can initiate the setting of this material. The solution gel slowly on standing after 3 or 4 weeks. That is why it is necessary, if we see that solution converted into gel, so we have to make fresh solutions. Then accelerator and shrinkage. Hydrolysis and gelation can be. क्या हुआ बीबी? जी इंशा बीबी क्या हुआ आपको? आपका कैमरा ओपन है जी. कोई प्रॉब्लम है? नो सर, गलती से ओपन हो गया था. ठीक 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 ठीक. अच्छा जी. Shrinkage. So hydrolysis and gelation can be promoted by accelerators, and accelerator in these are amines, and the name of accelerator is piperidine. ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है?
Shrinkage occur as a result of hydrolysis reaction. तो जब हाइड्रोलिसिस होगा, पानी जो है उसका लाइसिस हो जाएगा तो श्रिंकेज हो जाएगी। इस चीज को जरा सा जहन में रखिएगा कि इस रिएक्शन में, ये जो है रिएक्शन, इसमें किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल चीज इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस रिएक्शन आल्सो, दिस श्रिंकेज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन श्रिंकेज। कौन सी श्रिंकेज जी? जी ग्रीन श्रिंकेज। जी हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, ये मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूं कि ग्रीन श्रिंकेज। तो ये ग्रीन श्रिंकेज कहां पे होगी? जब हमारा कोई रिएक्शन एक्सटर्नल नहीं होगा, इंटरनली ही उसकी अपनी श्रिंकेज जो हो रही है उसके अपने रिएक्शन से, उसमें एक श्रिंकेज होगी हमारी, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्रीन श्रिंकेज। ठीक है जी। Sir, why is it called green shrinkage? जी इसे ग्रीन श्रिंकेज क्यों कहते हैं? इसे ग्रीन श्रिंकेज इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई एक्सटर्नली कोई चीज इस्तेमाल नहीं हो रही ना। जो चीज सिंथेसिस जो है नेचुरल प्रोसेस के साथ हो जाए, ठीक है ना जी, उसको हम ग्रीन कहते हैं। अमूमन जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जिनमें कोई एक्सटर्नल चीज इन्वॉल्व नहीं हो, जो अपने ही रिएक्शन के दरमियान में बन जाए, इट इज कॉल्ड एज ग्रीन। बस सिंपल ग्रीन। तो here we are seeing the shrinkage, so it is a green shrinkage. Now अब अमूमन हम लोगों ने क्या चीज देखी हुई है कि जब भी हम प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी चीज की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना चाहते हैं, स्पेशली व्हेन पाउडर एंड लिक्विड आर प्रेजेंट, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनकॉर्पोरेट मोर पाउडर than the liquid. Either the liquid is a solution of anything or a water, simply water. Clear? Now this incorporation of, आज क्या बात है, आज कम लोग हैं, 28, 29, 29, 30 हो रहे हैं। Process is added by gradation of particle size. Different particle size, different grade particle size are used. अब 31 हुए हैं। आप लोग हैं कितने? 31 के 32? सर ये मजर क्या? 34 है। 34 है। 34 है। पता नहीं किससे कैसे 34 तुम लोग यार, मुझे तो तुम लोगों की समझ नहीं आती। सर मैं आज अटेंडेंस शीट सेंड करूंगा आपको। वो तो तुमने मेरा ख्याल से कुछ साल कब से कह रहा है ये मजर, पता हाँ। नहीं क्यों सेंड नहीं कर रहा। वही ना, ये मुझे कैमरा भी मजर खान है। वही ना, ये बड़ा बहुत बड़ी सियासतदान है। मजर है, कैमरा दी बंद कर। खैर खोलो जरा देखें तो सही, मजर की तस्वीर तो देखें ना। है ना, इसकी तस्वीर हम देख बंद ही कर दिया हैं, बंद कर दिया मजर ने। बंद कर दिया तो उस्ताद आदमी है ना। जी सर। अच्छा मजरा कुलाव के सर देवी नहीं आओ ना, चल गोरम के सोख दे। सर वही नहीं हैं? ऐसा का हां से चल तो बोले कायल। अच्छा जी, अब्दुल्ला पता नहीं लगी खबर है तुम्हारा ताल्लुक खराबी है? ताल्लुक खराबेगी? जी सर। ताल्लुक खराबेगी कि ताल्लुक खराबेगी? बस सर अपरासियात से पूछे सर ये क्या मसला है सर? किस चीज का मसला? ये ताल्लुक खराब होने वाली बात है। हाँ हाँ ना, ये तो पूछना चाहिए ना इससे, कौन सा ताल्लुक खराब हो जाता है भाईजान? ये अब्दुल्ला, सर अब्दुल्ला आ जाए तो उससे पूछ लेंगे। अब्दुल्ला आ जाए तो उससे भी पूछ लेंगे, लेकिन ये क्या हुआ है, 1 मिनट ठहरना। अच्छा जी, ये हो गई जी एक चीज। अच्छा जी, और ये हम इसको नीचे डाउन करते हैं जी जनाब। तो डिफरेंट ग्रेड्स हम यूज करते हैं ताकि हमें एक पैक्ड मटेरियल मिल जाए। स्ट्रेंथ कंट्रोल ऑब्वियसली थ्रू थिक almost dry mix is used for only for silica bonded material to encourage or to promote close packing, and it will result in a strong investment as possible.
Now shrinkage and inversion expansion. Inversion expansion already we have discussed. ये 32वां कौन आया यार? जुनेद है, जुनेद जुनेद आया सर, जुनेद जुनेद पहाड़ी। पहाड़ी। तो ये जुनेद पहले कहाँ पे था? सर वो इसका इंटरनेट खराब है सर, इसलिए वो इसे लॉग पहाड़ इन पे चढ़ना पड़ता है सर। लेकिन जुनेद इधर मेरे पास तो बड़ा अजीब जगह पे आता है। जुनेद और कायनात हुसैन ये दो आए हैं कि नहीं? हमें तो सिर्फ जुनेद शो हुआ है। हाँ, मुझे जुनेद के बाद कायनात हुसैन भी शो हो रही है, ये क्या मसला है? जी बीबी आप पहले से बस यही है। ये बस लेक्चर ऑन करके सारे सो जाते हैं सर। लगता यही है मुझे कि ये सारे ही सो जाते हैं और मुझे इन्होंने अज़ाब में डाला हुआ होता है, तो इनका लेक्चर जो है ना ये चेंज करना पड़ेगा टाइमिंग। सर इनसे अचानक सवाल करें। तो यही यही करता हूँ ना, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी तो कोशिश यही सर होती नाम लेके है। नाम लेके पूछा करें सर। हाँ अब यही ये कुछ सर करना पड़ेगा। हम तो जागे हुए होते हैं सर। वही ना, तो ये हमारा टाइम जाया कर रहे हैं, तो इनके लिए यही है कि बेहतर कि इनको दोपहर ही को बुलाया जाए। नहीं सर, ये टाइम बिल्कुल सही है सर, दोपहर को हम सोए होते हैं सर। यस सर। चलो ठीक है जी। श्रिंकेज जो होगी और इन्वेस्टमेंट इन्वर्शन एक्सपेंशन वो क्या कैसे होगी? ऑलरेडी डिस्क्राइब द इन्वर्शन फिनोमेना। इफ वी हीट दिस मटेरियल, a smaller scale shrinkage occurs. Why? Due to the loss of water and alcohol from the gel. क्योंकि अल्कोहल हमारे पास उसके अंदर जेल में प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी, और वाटर भी उसके अंदर होता है, तो वो इवेपोरेट जब करते हैं तो क्या होगी? श्रिंकेज हो जाएगी शुरू की स्टेज में। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी। थर्मल एक्सपेंशन मतलब जो जो उसको हीट करते जाएंगे वो फैलता जाएगा। एंड दिस एक्सपेंशन इज सेम एज is seen in gypsum bonded investment materials. Ethyl silicate bonded investment do not expand on setting as the gypsum bonded and phosphate bonded materials expands. So total linear expansion is identical to the linear thermal expansion. यहां पे हमारी सिलिका बॉन्डेड मटेरियल खत्म हुआ। नेक्स्ट फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स, पाउडर कंटेनिंग सिलिका, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अमोनियम फॉस्फेट। अब यहां पे तीन चीजें हैं, ज़हन में रखिएगा। पाउडर के अंदर सिलिका, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अमोनियम फॉस्फेट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉस्फेट बॉन्डेड। हालांकि जो रूटीन है उसमें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अमोनियम फॉस्फेट बॉन्डेड कहना चाहिए, लेकिन कुछ मतलब फॉस्फेट जो है वो लोगों के नाम मुंह पे चढ़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे आखिर में फॉस्फेट ही आता है इतना लंबा नाम की बजाय, तो फॉस्फेट बॉन्डेड सिंपली कह दिया जाता है। नाउ अगेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर और फॉर इंप्रूव प्रॉपर्टीज with the silica solution of silica. So the reaction when the reaction occurs to form magnesium ammonium phosphate after mixing. So magnesium ammonium phosphate and plus 6 molecule of water. This binds silica together to form investment set investment. Now formation of magnesium ammonium phosphate involves a hydration reaction. सबसे पहले वो पानी लेगा, जिस तरीके से हम जिप्स उसमें करते हैं जिप्सम के अंदर, सबसे पहले डिसॉल्व होता है, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन शुरू होती है। समझ आ रही है ये चीज? जिप्सम में क्या होता था, हमने जब उसको पानी में डाला तो 0.8% उसकी सॉल्युबिलिटी थी ना, तो वो पहले सॉल्युबल होती थी। सॉल्युबल होने के बाद वो जब डाइहाइड्रेट होती थी तो फिर उसके बाद उनकी ग्रोथ शुरू होती थी, क्रिस्टल्स बननी शुरू होती थी। जी यस सर। चले
आप कुछ कहना चाह रहे थे कोई? नो सर। अच्छा जी, एक्सपेंशन लाजिम बात है, एक्सपेंशन उसी तरीके से होगी, आउटवर्ड थ्रस्ट होगी, ग्रोइंग क्रिस्टल जो जो बढ़ेंगी तो बाहर की तरफ जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी। ये 33 वाला कौन आ गया यार? ये संदल खटक, ये सर इसको सर निकालें, ये सर इसको सर निकालें, इसको निकाले। सर ये आउटसाइड वो है। पे का अकाउंट वाला है, तो निकालें ये इसको। फिर वही बात ये है कि ये किधर से आ जाता है, ये इसको पहली फुर्सत में निकालें सर। तो वही ढूंढ रहा हूँ ना इसको अभी कि ये किधर है। ये संदल खटक आ गया है, इसको पहली फुर्सत में ही निकाल देते हैं। और ये चीज सर। है कोई बेगैरत सर। ये गया, लेकिन चीज वही है कि अगर इसको हमने निकाल भी दिया है ना तो ये उसमें आ जाएगा, क्योंकि इसको हमारा पासवर्ड चला गया है। पासवर्ड तो मैंने डाला ही नहीं था, लेकिन इसके पास लिंक गया हुआ सर ये पासवर्ड हमारे फिर डाला क्लास करें में सर, जी। तो वही बंद है जो आपको बता रहा हूँ पासवर्ड सर, फिर ये डाला वही करें सर। ये वो रूम क्रिएट किया करें सर, फिर ताकि कोई एंटर हो तो फिर उसकी परमिशन पहले आप दें सर। तो बेटा जो भी है, अब ये तो उसमें आ गया ना, रूम क्रिएट तो मैंने कर देता हूँ, लेकिन वैसे आपको बात बता रहा हूँ कि पासवर्ड तो उसके पास फिर आ गया। अब जिस वक्त आता है तो इधर 5-6 इकट्ठे आते हैं, तो मैं उन सबको सर। कहता हूँ कि आप आ जाओ अंदर। तो अब उसके अंदर अगर ये आ जाता है तो फिर मुझे ढूंढना वही मसला हो जाता है, ठीक है ना। सर ये वही वाला बंद है। चलें, अल्लाह खैर करे, 1-2 मतलब भागेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सर इस तरह कर लें जी। कि जो बंदे आपकी क्लास में मौजूद है उसका एक रिकॉर्ड बना लेना, तो मजहर को दे दें, वो खुद बेटा कर बेटा लेगा। बात यही है ना कि इसमें और लोग भी आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पे देखें, ये तो जो है मैंने आपके सिर्फ प्राइवेट ग्रुप्स में किया था, वो जनरल ग्रुप में तो मैंने डाला ही नहीं था कि अगर ये उसके अंदर होता तो आ जाता। तो इसका मतलब यही है कि कोई ऐसा आदमी इन्वॉल्व है हमारे पास कि जिसने इसको ये लिंक दिया है, वरना तो लिंक तो जो है अब आपके सिर्फ प्राइवेट ग्रुप में शेयर हो रहा है। सर ये हमारे क्लास का ही बंदा है सर। बस फिर ऐसे ही होगा ना, ये यही कुछ कर रहा है। चलें, जो कुछ भी है अल्लाह खैर करे। वो हमारी क्लास में एक दानियाल जो हमारे ग्रुप में है, हाँ वो तो अभी मीटिंग में नहीं है। अभी ये अभी जो है पार्टिसिपेंट्स में वो दानियाल नहीं है अभी। बेटा। अच्छा सर और उसने मुझे अपनी वो डिटेल भी सेंड नहीं किए दानियाल ने। बचा चलो हो सके और देख लेंगे, अगर हो तो उसका जो नंबर है उस पर कॉल करो उसको और फिर बात करते हैं उसके साथ। चलें, आप मुझे वो भेजिएगा, इसको तो खत्म करें हम। अच्छा जी, फिर क्या होगा कि आउटवर्ड थ्रस्ट जो होगी उसकी बनेगी ग्रोइंग क्रिस्टल्स की, बाहर की तरफ जाएंगी। और अगर ये हम इसको हाइग्रोस्कोपिक करते हैं तो वो ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है जी, एक्सपेंशन ज्यादा होगी। और अनमिक्स्ड मटेरियल में अगर हमारा ये चला जाता है मॉइस्चर, तो उससे क्या होगा, वही प्रॉब्लम आएगी हमें कि उसके साथ हमारा मटेरियल जो है वो डिटरेट होगा और उसके अंदर क्या होगा, उसकी सेटिंग डिले हो सकती है और उसका इफेक्ट्स जो है वो एडवर्स हो सकते हैं। सो द कंटेनर और पैक शुड बी केप्ट क्लोज्ड व्हेन नॉट इन यूज। अच्छा जी, नाउ स्ट्रेंथ एंड सेटिंग एक्सपेंशन, ये फिर आया, देखा ये जुनेद आया है। अच्छा जुनेद है सर। ये तो 33 फिर कैसे हो गए? जुनेद के नाम से तो नहीं आ रहा दोबारा ये? 2 जुनेद नाम। जुनेद 2 देख लेते हैं सर। यार ये अब ये नो सर, एक ही है। चलो बस अच्छी 2 बात। है सर, 2 है। 2 है, एक जुनेद तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ना। चला गया है सर। नहीं, एक ही जुनेद है सर। एक चला गया है पता। जुनेद को नंबर आकर लाड़ो। चलो बस, यस सर, आया था, निकल गया। जुनेद को बोलो बातें करे ताकि हम पहचान ले। जुनेद नहीं है कुछ तो बोलो। अभी भी इसी के अंदर है, लेकिन वही है ना कि अब इसको ढूंढोगे ये किस नाम से है ताकि इसे बात करते हैं, इसको क्या मसला क्या है। अब्दुल्ला कलर आ गए। जुनेद तो मौजूद है सर, जी जुनेद तो अपने नाम से मौजूद है। यस चलो, सर, जुनेद का चला गया, कनेक्शन अभी चला गया, देखो 32 हो गए फिर वापस 32। ये अब्दुल्ला जो कलर आ हमें गए। शॉक चली गई। अब्दुल्ला कलर आ गए। अब्दुल्ला रगलो अवला ये जो हाँ, हमें जल्दी शॉक होने चली गई। गई। चलो बस ठीक है जी। यूज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन जो होगा हमारा, अगर मैंने पहले कहा था कि हम जब सिलिका का वो डालेंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिलिका
इंस्टेड ऑफ वाटर अगर हम डालते हैं तो उसके डुअल इफेक्ट्स होंगे। नंबर 1, सेटिंग एक्सपेंशन को भी वो करेगा इंक्रीज, और दूसरे नंबर पे मटेरियल को भी स्ट्रेंथ देगा। नेक्स्ट इज द हीटिंग रिएक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर देखें कि इन्वेस्टमेंट को, कौन सी इन्वेस्टमेंट को, जो हमारी कौन सी है जी, कौन सी इन्वेस्टमेंट, फॉस्फेट बॉन्डेड, फास्फेट बॉन्डिंग को अगर हम हीटिंग करते हैं, ये फिर आया, अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रायर टू कास्टिंग मोल्ड, enlargement occurs by both thermal expansion and inversion of the silica। इसको जरा चेक करो कि ये कौन है। सर वो थर्मल, मुश्ताक चली गई थी, वो आ गई। तो 33 तो हमारे पास नहीं थे, मेरे ख्याल से 32 थे सारे। चलें, investment prior to casting mold, enlargement occur by both thermal expansion and inversion of the silica। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें होता है, ठीक है जी। कास्टिंग से पहले इसके अंदर दोनों चीजें होंगी। थर्मल एक्सपेंशन इज ग्रेटर फॉर द कोलाइडल सिलिका मिक्स्ड मटेरियल्स, ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड कि पानी वाले में कम होगी एक्सपेंशन थर्मल और सिलिका में ज्यादा। वो क्यों? कि उसके अंदर सिलिका ज्यादा है, सिलिका की एक्सपेंशन ज्यादा होगी, और पानी की वजह से जरा दूर दूर हो जाएगा सिस्टम, उसकी वजह से बजाय पानी वाले में एक्सपेंशन के इनिशियली कंट्रैक्शन हो सकती है। Now, at a temperature of 300 degree centigrade, ammonia and water liberated। ठीक है जी, इसको अगर आप देखें तो अमोनिया और वाटर हमारा इसमें से निकल जाएगा, और फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी सिस्टम सारा। और जब एलिवेटेड टेम्परेचर पे हम पहुंच जाएंगे तो जो हमारे पास रिमेनिंग फास्फेट होगा वो सिलिका से मिलके सिलिको फास्फेट बना देगा। And these cause a significant increase in the strength of the material at the casting temperature. Casting temperature, as already we have described, is very much high. Now, there are two types of phosphate bonded investment material. Unlike gypsum bonded, in gypsum bonded we have studied 3 types, and in silica bonded only 1 type. So phosphate bonded investment material has 2 types: type 1 for inlays, crowns and other fixed restorations, and type 2 for partial dentures and other cast removable restorations. Now, coming toward the properties of the investment materials. Now, these are the general and properties of all the investment materials. Number 1 is their thermal stability. Already you people know that they should be thermally stable at higher temperatures and retain their integrity at high casting temperatures. Gypsum bonded investment materials decomposes above 1200 degree centigrade, so it is not used for materials above 1200 degree centigrade, which it's not are used for chromium। जी वो क्रोमियम के लिए यूज नहीं हो सकता, उसका 1450 था जी। अच्छा अच्छा, ये बार बार कहते हैं जी, 2 लड़कियां कह रही हैं कि हमारी वो हो रही है, बार बार हम उससे आउट हो रहे हैं, तो लेकिन अभी तो मेरे पास 33 पूरे हैं। चलें, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे आ गए हैं। यस सर, अभी तो हैं 33 यस सर। तो 33 है। चलें, और ये मतलब उसमें मुझे मोबाइल पे मैसेज कर देना, तो मैं मोबाइल के ऊपर देखूं कि इधर देखूं? इधर मेरे पास पहले से टाइम आप लोगों ने बहुत कम दिया होता है मुझे। अच्छा जी, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अमूमन वो हम बात कर चुके हैं। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो है क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, और जब ये डिकम्पोज होगा कैल्शियम सल्फेट, और तो क्या होगा,
और सिलिका जो है हमारा, तो इससे क्या बनेगी हमारी सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, ये वाली। और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस जो है ये पंजेंट होती है और उसके अलावा हैजर्डस गैस होती है, तो इसलिए इससे थोड़ा सा बचना होता है। उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन, they also produce carbon monoxide. Again, it is not a pungent or it is a odorless gas, but it is a It's dangerous. बिल्कुल injurious type of gas. Now, thermal properties. Carbon may be derived from the residues. कार्बन अब आती कहां से है? जो हमारा वैक्स पैटर्न होता है या कुछ और जो हमने ग्रेफाइट वगैरह उसके अंदर डाला होगा, तो उसमें से आती है, वरना तो हमारे पास कार्बन कुछ नहीं होती। लेकिन वैक्स के अंदर बाज़ औक़ात हमारी कार्बन रह जाती है क्योंकि हाइड्रोकार्बन पे होता है वो। और ग्रेफाइट भी हम यूज करते हैं, तो ग्रेफाइट भी कार्बन ही की एक टाइप है। अनदर रिएक्शन कैन अकर व्हाइल विच लिबरेट्स सल्फर डाइऑक्साइड। उधर पीछे कौन सी हुई थी? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो दूसरा जो रिएक्शन है हमारा, ये कैल्शियम सल्फाइड जो है डाई है। जबरदस्त। अच्छा जी, दीज रिएक्शन अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी ज़हन में रखिएगा कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये जाके होते हैं, उससे पहले नहीं होते। एंड दीज शुड बी मिनिमाइज्ड बाय हीट सोकिंग। हीट सोकिंग क्या होता है? जैसे पानी के अंदर हम किसी चीज को कर देते हैं, तो इसी तरह से हीट आग के अंदर जी फर्नेस वगैरह में फर्नेस के अंदर अंदर हम इसको हीट सोकिंग करते हैं, हीट देते हैं। ओरिजिनली तो सोकिंग नहीं कहना चाहिए, मतलब हीट के अंदर इमर्शन होती है, सॉरी पानी के अंदर भी मैंने इमर्शन होती है। सोकिंग का मतलब तो होता है उसको खुश्क करना। तो है लफ्ज तो यही कि हम इसको हीट के अंदर सोक करते हैं, हीट के अंदर इसके अंदर से जो कुछ हो उस सबको खुश्क करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो इसका फायदा क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट मोल्ड जो होता है हमारा कास्टिंग टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है जी, ये हीट सोकिंग का। नाउ ऑक्जेलेट जो हमारे पास होते हैं, जो हम किसी में डाल देते हैं, तो ये क्या करते हैं? जिप्सम डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा डिकम्पोजिशन को कम कर देते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर फिर हमारी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इसके बाद ये फास्फेट और सिलिका बॉन्डेड मटेरियल्स हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ, so while the other one, the gypsum bonded have not any sufficient strength at elevated temperatures. So our phosphate bonded and silica bonded materials can be used for casting base metal alloys, and gypsum bonded बार बार आपको बता रहा हूं कि only used for gold and its some derivatives or its some products which are used for casting. The strength of phosphate bonded material also increased due to the formation of silicophosphate upon heating, already described previously. Wax burnout temperature is varied for different type of materials. Typical wax burnout temperature for gold alloy is 700 to 750 degrees centigrade. If we use palladium silver alloy, it should be 730 to 815 degrees centigrade, and if we use base metal alloys, it should be 815 to 900 degrees centigrade. And this temperature is hold for 30 minutes for small molds and 1 hour for large mold before metal is cast or casting is proceeded. Burnout times is needed to extend when we use resin based pattern material, because resin based pattern material have to decompose or burn out at elevated temperature or at temperature more takes more time than waxes. Is it clear? Ye.
यस सर। यस रेजन बेस्ड जो होंगे वो उनको हम ज्यादा देर देंगे टेम्परेचर, क्योंकि उसने उस टेम्परेचर, अमूमन हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होती है तो ये गुड कंडक्टर नहीं होती ना हीट की, तो वो ज्यादा देर तक हम रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से उसको बर्न आउट कर सके। और अगर सिंपल हमारे पास इनले वैक्स है या कोई दूसरी वैक्स है तो वो तो बड़े आराम से जल भी जाएगी और निकल भी जाएगी। नाउ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, mechanically these are not good but sufficient when they are used for casting. They should be having sufficient mechanical properties. They should have a strength to withstand the stresses which are set up when molten alloy enter the investment mold. Now heat causes weakening of the investment and leads to the incorporation of porosity into the casting. लाजिम बात है, जब हम हीट किसी भी चीज को करते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर जब वाटर और दूसरी चीजें उसमें से रिलीज हो रही हैं तो पोरासिटी आ जाएगी। किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं जब एलिवेटेड टेम्परेचर पे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो लो मतलब टेम्परेचर की जो चीजें होंगी, जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो क्या होंगे, बर्न आउट हो जाएंगे। तो उनकी जगह पे फिर क्या हो जाएगा, पोरासिटी बन जाएगी, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम दे सकती है। और ज्यादातर ये कहां पे आएंगी, जिप्सम बॉन्डेड मटेरियल्स में। एंड सो दैट दीज जिप्सम बॉन्डेड मटेरियल्स आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू यूज विद those alloys which are cast well below 1200 degrees centigrade. Now two materials are there which have much cohesive strength. Number one is silica and the other one is the phosphate bonded. Phosphate bonded materials having such a greater cohesive strength that they needs no casting ring. They can be the casting can be proceeded without casting can be done without the casting ring. Casting ring. Lekin initially we have to put it in a ring because to give a particular shape or a particular form for casting. So initially we have to use a plastic ring to hold the investment material, and this ring should be removed before heating. सर क्या इसको हाथ से नहीं कर सकते फिर? हाथ से क्या, हाथ में पकड़ के गोला बनाओगे? इस रिंग हमें चाहिए, उसकी पर्टिकुलर शेप होती है, उसके नीचे स्मूथ आर्मर होता है, वो चीज आपने देखी हुई है, वो एक उसके लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमने रखना होता है उसको। यस, वो कॉपर रिंग टेक्निक जो था, कॉपर तो नहीं था ये, लेकिन रिंग होगा, ये मेटल का रिंग होता है, कॉपर नहीं होता अमूमन। कॉपर रिंग तो वो पहले पढ़ा था ना, टेक्निक जो था वो तो छोटा सा होता है ना, ये तो बहुत बड़ी चीज होगी। ये रिंग आपको दिखाएंगे, ये रिंग इतनी होगी, इसके अंदर आपका हाथ आराम से चला जाएगा। और अब पूरे मुंह का किसी का बनाना है, अगर हमने लोअर या अपर जा का, तो उसमें आपको कितना बड़ा रिंग चाहिए? वो तो एक दो दांत हो तो छोटा सा हो सकता है, लेकिन उसमें भी कॉपर रिंग नहीं आता एक दांत के लिए भी। कॉपर वैसे भी इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये ज़हन में रखिएगा। वो जो कॉपर होता है, वो कॉपर रिंग वाला, वो बहुत थिन सा होता है। इसमें हम अमूमन जो होता है स्टेनलेस स्टील या ओनली स्टील यूज करते हैं। नाउ हायर स्ट्रेंथ phosphate bonded materials indicates their suitability for use in all types of alloy, that is precious, semi precious and base metal. Precious ये gold वगैरह जो होते हैं, semi precious जो mixed होते हैं, और base metal सिल्वर वगैरह और निकल क्रोमियम। porosity already explained, जिप्सम बॉन्डेड के अंदर होगी, ठीक है जी, क्योंकि हमने कहा कि उसके अंदर वाटर होता है, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और उसके जो है ग्रेन ग्रोथ जब जिस वक्त होती है तो आउटवर्ड थ्रस्ट की वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ बनता है हमारे पास, क्या इसको कहेंगे, पोरस सा मटेरियल होता है वो। सो एस्केप ऑफ एयर
एंड अदर गैसेस। तो वहां पे जब हम कास्टिंग वगैरह करते हैं और अगर कोई गैस उसमें प्रोड्यूस भी होती है तो वो एस्केप कर जाती है दूसरी साइड से, वापस नहीं आती। हाँ, लेकिन सिलिका बॉन्डेड मटेरियल जो होता है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। एज ऑलरेडी वी हैव डिस्क्राइब्ड दैट वी हैव टू यूज much powder and different grades of powder, so it is a almost dry material and it should be, or it is virtually porosity free, so a danger of back pressure is there while casting. तो कास्टिंग आपको मैडम ने पढ़ाई हुई है, आपके ज़हन में होंगी, मैं भी इसको आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी बैक प्रेशर जो होगा उसका चांसेस हमारे सिलिका बॉन्डेड में बहुत ज्यादा होगा। उसमें वो प्रेशर बन जाएगा ना, वो गैसेस की वजह से आगे वो नहीं जा सकेगा ना, क्योंकि आगे उसके पोरस नहीं है ना, बंद है बिल्कुल। जबकि हमारा जिप्सम बॉन्डेड और फास्फेट बॉन्डेड जो है इनके अंदर पोर्स होते हैं, इसलिए वो जा सकता है। नाउ दीज प्रॉब्लम इन सिलिका, ये फिर ये आ गया है और इसको फिर इसका जो बाप है लगता है को मुर्गा ही है। ये मुदस्सिर है, मुदस्सिर। अगर मुदस्सिर है तो फिर बहुत गलत बात कर रहा है। मुदस्सिर तो तुम क्या कर रहे हो? ये सर ये कुछ स्टूडेंट का नेट इशू है सर। नेट में इशू हो तो उसके लिए मुर्गा बोलेगा अब हमारे लिए? नहीं सर, वो जुनेद ने मुझे मैसेज किया कि मैं बार बार एंटर होता हूँ और खुद मुझे भी किया है सर, मीटिंग लेफ्ट होती है सर। तो बेटा अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? मुझे ये बताओ, आप 33 इकट्ठे हो और वो मतलब 32 में हो जाते हैं, कभी 33। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं इसके लिए, सिवाय उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अब उसका नेट प्रॉब्लम अच्छी हो जाए। अच्छा जी, ये तो मौजूद है, जुनेद तो है सर अभी। वो सराग है, वो सराग है वक्तिनो। तो अभी एक निकल भी गया, 33वां निकल गया और 32 रह गए फिर। अच्छा जी, नाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाय मेकिंग वेंट्स। वेंट्स क्या होते हैं? सुराख। तो उसके अंदर हम खुद सुराख डालते हैं, किसके अंदर? सिलिका बॉन्डेड मटेरियल के अंदर। तो इसके बाद जी हमारे पास कंपनसेटिंग एक्सपेंशन। टाइम भी खत्म हो गया सर। हाँ तकरीबन बस खत्म ही हो गया। बस ये कंपनसेटिंग एक्सपेंशन जो है इंशाल्लाह फिर हम करेंगे जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सर ये एग्जाम्स का क्या बनेगा सर? एग्जाम भी हो जाएंगे ना जी, फिक्र ना करो। आप लोगों की प्रीवियस, एक मिनट, वो जो है ना